Okay, student, good morning, all of you. And yesterday we have done up to page number, I think, 6. We are starting with. Yes, children. So you have to revise up to this page, and I am today taking the topic diversity in the living world according to our NCERT. Okay, better. So here he has introduced one term, biodiversity. Tell me, what do you mean by the term biodiversity, children? Yes, but biodiversity means number of living organisms present in the yes, on yes, the yes, Bete. Yes, Chirag want to tell the answer. Yes, Bete, Chirag, speak up. When biodiversity means that on different gradients of land, different species of animals and plants are present. So the biological world is very diverse and thus is referred to as biodiversity. Yes, Bete. Okay, simply biodiversity means the diversity among the living beings. ठीक है, तो whenever you see in your surroundings, whenever you visit your surroundings or see whatever is present in your external environment, you will be very much amazed to see such a huge diversity that is found in the living world. ठीक है, we are not going to tell you that this is the accurate data. It is only the estimated one. कि on planet Earth we are supposed to have 1.7 to 1.8 billion species. It may be of the plant or maybe of the animals. So we have to use here the term biodiversity for them. Means there is a vast diversity that is present between the living organisms. We have numerous species of plants, numerous species of animals. और अगर मैं plants की भी बात करती हूँ, ठीक है बेटे, तो plants में भी we have different type of plants. ठीक है, I am not able to count how many species of algae I have, how many species of bryophytes are there, how many of pteridophytes, gymnosperms or angiosperms. Okay, similarly I am not able to count the number of animals that are present on the earth. Okay, there are numerous species of insect, numerous species of flatworms, roundworms, okay, sponges, so many aquatic animals. So how I can solve this problem? So here what the author said, it is not possible for us to remember such a huge number of species. Okay, when we visit different places, then what you see generally that people call these animals, these plant species by their local names. Okay, they use their local language to name these plant and animal species, and that are not familiar for us. Then how can we know that these people, they are talking about this species? So for this purpose, what we people think that there may be some unique type of names to these species, and that is used in every part of the world so that each and every person know that species by that common name. ठीक है, अगर हर एक जगह पे जाएंगे, अगर मैं इंडियन हूँ और मैं अफ्रीका चले जाती हूँ या अमेरिका चले जाती हूँ, तो वहां पे वो कहते हैं कि जो मैं वेजिटेबल यूज कर रही हूँ, ठीक है बेटे, उसको वहां पे एक पर्टिकुलर एक लोकल नेम से जाना जाता है. और इंडिया में हम पंजाबी जो है उसको किसी और नेम से जानते थे. पर वो कहते हैं कि इस तरह से अगर हर एक जगह पे वेरिएशंस है इन द लोकल नेम ऑफ द स्पीशीज, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेमोराइज दीज स्पीशीज. तो उसके लिए साइंटिस्ट उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक नेम्स, कुछ स्पेसिफिक नेम्स होने चाहिए जिससे कि हम इसीलिए स्पीशीज जो है उनके नेम्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सके, हमें पता लग जाए कि अगर हम ये नेम ले रहे हैं then this name is connected with this species. So for this purpose they have introduced the concept of nomenclature. Okay, but if you have to define nomenclature, then nomenclature means a process or a system of giving names to the species. ठीक है, हमने अब किसी स्पीशीज जो है उसको नेम देना है, हमने बताना है कि सो एंड सो स्पीशीज इज अ प्लांट स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज जो है वो एनिमल की है, या फिर मैं कहती हूँ कि एनिमल में भी ये स्पीशीज इंसेक्ट की है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है. ठीक है, ये जो है क्लास ममेलिया को बिलोंग करती है, ये क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करती है, ये जो है पाइसिस के मेंबर है. ठीक है बेटे,
तो ये सारे नेम जो है मैंने किस बेसिस पे रखे हैं, तो कहते हैं कि whenever we have to give a specific name to a species, by that name, that particular species, it is identified in the whole regions of the world, then one thing I must have to be considered, that first of all I have to identify the species. ठीक है, सबसे पहले मुझे जो है किसी भी स्पीशीज का नाम देने से पहले मुझे क्या, मेरे लिए क्या जरूरी है, उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है बेटे, अब किसी भी चीज की अगर मैंने पहचान करनी है, आई हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पीशीज, दिस मींस आई हैव टू डन दैट आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आई एम एबल टू सी इन दैट स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि पर्टिकुलर स्पीशीज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, then all of you have studied the characters of phylum Arthropoda, that jointed appendages are there, exoskeleton is made up of chitin, wings are there। ठीक है बेटे, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये स्पीशीज आर्थ्रोपोडा की है, तो इसका मतलब मेरे माइंड में फटाफट ये करेक्टर्स आ जाएंगे कि भाई जॉइंटेड लेग्स होंगी एनिमल की। ठीक है, एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, काइटन से बना हुआ है, विंग्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट है तो पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, विंग्स यूज करता है। ठीक है, और मैं कहूंगी कि उसमें क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है सेंटर में। ठीक है, और वहीं पे उसका बॉडी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है। तो such type of characters is all of a sudden it comes in my mind, so on the basis of that I am able to identify the species. So what is identification? Actually it is given in your book, that identification is to correctly describe an organism। ठीक है बेटे, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स दैट कम्स इन योर माइंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। And when you become successful in identifying the species, then what task later you have to perform now, that you have to give name to that species. So here we have introduced the term nomenclature. It simply means giving name to the species. और अभी मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि हर एक स्पीशीज जो है उनके इस तरह से नाम रखे जाएंगे कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हम उस स्पीशीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम जो नाम उसका लेंगे ना, वो इंडिया के अंदर भी उसका वही नेम होगा, अमेरिका में वही नेम होगा, और अदर कंट्रीज में भी उसे उसी नेम से जाना जाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस the scientists, they have established certain procedures, certain organizations, and that are concerned by with giving name to different species। okay बेटे, तो उसमें उसने ये बताया कि different biologists जो हैं उन्होंने अलग अलग organizations बनाई, और अगर हमने प्लांट्स को नेम देने हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज नोन एज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल nomenclature. So this organization is related with giving name to the different plant species on the basis of certain observable characters when we see that species. And if we have to give names to the animal species, so for this purpose we have some another organization along with this ICBN, and that is known as ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature। ठीक है बेटे, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो ICZN की हेल्प लेते हैं नेमिंग करने के लिए किसी भी एनिमल स्पीशीज को, और अगर प्लांट स्पीशीज की नेमिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ICBN है, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके बेटे, तो इसमें वो कहते हैं कि जो भी हमने नेम देने हैं ना स्पीशीज को, दीज आर द साइंटिफिक नेम, बिकॉज दीज नेम्स आर एप्लीकेबल थ्रूआउट द वर्ल्ड, in any of the country, any of the region, any of the state। Okay students, so for this purpose, because these are the scientific names, so here the scientists, they consider certain technical characters that are found in these species। okay, but so numerous scientists, they made attempts for giving name to different species। so first of all, this attempt was done by a scientist and his name was Carolus Linnaeus। okay student, and Carolus Linnaeus has given us a system of you can say nomenclature, and that system is known as binomial nomenclature। you have also studied a little bit about this nomenclature in class 9-2 in chapter diversity। okay but so binomial nomenclature, as the name itself indicate, ठीक है, binomial nomenclature means
that if we want to give name to a particular species, then the name of that species it consists of 2 words. ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा किसी भी स्पीशीज का नेम, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होगा. तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसको डेजिग्नेट करेगा. तो फर्स्ट कंपोनेंट इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट ऑलवेज रेफर टू द जेनेरिक नेम, means it is the name of the genus to which that particular species belong. Okay, but and the second component of that name it actually refers to the species. Okay, तो कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज जो है ना उसका नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट नेम जो है वो हमेशा किसको डेजिग्नेट करता है, जेनेरिक नेम को, और दूसरा जो है वो हमेशा किसको डेजिग्नेट करता है, स्पीशीज के नेम को डेजिग्नेट करता है. You can say first is generic name, second is specific epithet. तो अगर मैं कहती हूँ कि we are the species of human beings, so human beings जो है उसका हम scientific name जानते हैं, we know the name of the human beings, it is Homo sapiens. Okay, बेटे, तो Homo here designates the name of the genus and sapiens here designate the name of the species. ठीक है, तो कई बार हम उसके साथ जो है साइंटिस्ट का भी नेम अटैच कर देते हैं, हम कहते हैं होमो सैपियंस लाइनस. दिस मींस दिस नेम वाज फर्स्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट लाइनस. तो हियर आर सम रूल्स दैट आर डिवाइस्ड बाय द साइंटिस्ट दैट हाउ वी हैव टू गिव द साइंटिफिक नेम टू द स्पीशीज. ओके बेटे, तो यहाँ पे हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई है. आई विल डिस्कस दीज टर्म्स लेटर ऑन. First of all, I want to tell you in detail about the binomial nomenclature. So as I have already discussed that this binomial nomenclature, it is actually the system of giving names in the form of 2 words, and first word it always designate the genus. Okay, and another thing is the second word, and the second word is related with the species. So always remember species is at the lowest rank and genus is a rank that is slightly above the species. ठीक है, if you have to define species, अगर हमने species को define करना हो, then what do you mean by the term species बेटे? Can anyone of you define species? Yes, children. Group of similar organisms. Yes, अगर थोड़ा सा और अच्छे से definition बनाए तो you can say that species are group of similar kind of organisms which have the ability to interbreed among themselves and to produce a fertile offspring. ठीक है बेटे, species ऐसे group of organisms होते हैं जो कि दिखने में एक जैसे हैं, जो fundamental characters जो हैं वो रखते हैं और उनके अंदर ability है कि वो आपस में interbreed कर सकते हैं और interbreed करके वो fertile offspring जो है उसको produce कर सकते हैं. तो मैंने आपको ये बताया in the process of classification, as you know that for nomenclature first we have to identify the species on the basis of certain observable characters, and when we give name to that particular species after identifying it, okay bete, then on the basis of giving names, ठीक है, जैसे हमने उनको नाम दिए हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, स्पीशीज जो है कौन स्पीशीज जो है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटे, क्लासिफाई कर सकते हैं. So whenever we have to classify the species, ठीक है, तो we have to classify the species on the basis of the rank that is provided to them. ठीक, तो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है. लाइट ऑन कर, और उसमें जो है सबसे लोएस्ट रैंक जो है दैट इज गिवन टू द स्पीशीज. ओके बेटे, स्पीशीज से ऊपर का जो रैंक है वो किसको दिया गया है, जीनस को दिया गया. ओके स्टूडेंट्स, so here in binomial nomenclature some things you have to remember that the system was introduced by the scientist Carolus Linus, and what the scientist that the name of a particular species it consists of 2 components. One is the generic component, a generic name, and other one is the species name. Okay student, तो उसके बाद देखिए where I am on page number 7 and here some of the points are discussed here bete, and that is regarding the rules of nomenclature. So whenever you are you want to give a name to a particular species, so for this purpose you have to follow certain rules, and these rules they comes under the universal rules of nomenclature.
सो व्हाट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर? तो उसमें सबसे पहले आपको बोलता है कि जब भी हमने किसी स्पीशीज को नेम देने हैं, सो दीज नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स दे आर जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या फिर ग्रीक जो है इटैलिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि जो साइंस से रिलेटेड रिसर्च है ना वो लैटिन और इटैलिक्स में पहले हुई है। ओके, सो उसके बाद उनका जो ओरिजिन है साइंटिफिक नेम्स का वो लैटिन जो वर्ड्स हैं उनसे हुआ है, इसलिए हम उनको जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। सेकेंड थिंग इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम। जब भी आपने किसी स्पीशीज को बायोलॉजिकल नेम देना है तो फर्स्ट वर्ड जो आप उसके अंदर यूज करेंगे वो वर्ड जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। तो अगर मैंने डिफाइन करना हो व्हाट डू यू मीन बाय जीनस, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मिलती जुलती स्पीशीज का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। ओके बेटे, तो हमेशा इन अ बायोलॉजिकल नेम द फर्स्ट component of that biological name represent the genus and the second component it always represent the species. So उसके बाद वो कहते हैं कि when both the words in a biological name they are written by your hand, then you have to separately underline each word. ठीक है, और अगर आप जो है दोनों ही नाम जो है अपने हाथ से लिख रहे हो तो फिर दोनों नाम को आपने अंडरलाइन करना है। और एक चीज तो आप और ध्यान रखेंगे, the first name denoting the genus starts with the capital letter. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि the technical name of the human beings is Homo sapiens. So whenever I have to write Homo, then I must remember that the first letter of Homo, H, is always हमेशा कैसा लेटर होगा? कैपिटल लेटर होगा। ओके बेटे, उसी तरह से अगर मैंने स्पीशीज का नेम यहाँ पे सैपियंस लिखा है तो सैपियंस में जो फर्स्ट मेरा लेटर है एस लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा। ओके, तो इस तरह से वी हैव गिवन बायोलॉजिकल नेम टू सो मेनी स्पीशीज। सो उसमें से अगर मैं एक कॉमन नेम आपको बताऊं तो अगर मैंगो की हम बात करते हैं तो वी हैव टू गिव द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो, देन ऑल ऑफ यू नो दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जो है यहाँ पे जीनस को डेजिग्नेट कर रहा है और इंडिका यहाँ पे स्पीशीज को डेजिग्नेट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आई फॉर इंडिया एंड आई फॉर इंडिका, दिस मीन्स इंडिया जो है उसी में किसका ओरिजिन हुआ है? मैंगोस का ओरिजिन हुआ है, यानी मैंगो जो है वो इंडिया का नेटिव फ्रूट है। ओके, और यहाँ से वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में गया है। तो कई बार वो कहते हैं कि समटाइम्स व्हेन यू सी द साइंटिफिक नेम ऑफ some of the species and what you see that along with this Mangifera indica sometimes Linus is also added. This means this name was first suggested by the scientist Linus, not always Linus, some of the other scientists if he has given that name then the name of the scientist is also joined later as a suffix. Okay bete, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। So I am on page number 7 and here I have going to tell you the definition of a classification. So you know that if you identify the species on the basis of certain observable characters, you also give name to the species. Then another very important thing is that on the basis of name, ठीक है, अगर आपने किसी species को कोई नाम दिया है, अगर मैं डॉग बोलती हूँ, अगर मैं कैट बोलती हूँ या फिर मैं कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज का नेम लेती हूँ, ठीक है बेटे, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे माइंड में उस स्पीशीज से रिलेटेड करेक्टर्स आ जाते हैं। अगर मैं डॉग का नेम ले रही हूँ तो मेरे माइंड में डॉग के ही करेक्टर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने डॉग बोला और मुझे कैट दिखने लगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ तो ह्यूमन बींग्स के करेक्टर मुझे सामने मेरे माइंड में आने लग जाएंगे, मंकीज के नहीं आने लग जाएंगे। तो अगर वो कहते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है उससे हमें नेमिंग का पता लगता है, तो व्हेनेवर वी डन दिस नॉमेनक्लेचर देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to memorize the species is to done the task of classification, because we are not able to learn the name of each and every species unless we are not going to classify that species. So what is this classification? This classification is actually the process by which anything is grouped into convenient categories, okay bete, based on some easily observable characters on them. ठीक है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको हम कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर
जो है क्लासिफाई करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं, उनमें प्रेजेंट कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि वी ऑल आर मैमल्स, तो टेल मी कि कौन से कैरेक्टर मैमल्स के मेरे माइंड में आएंगे स्टूडेंट्स? यस चिल्ड्रन, what are They the give characteristics? birth to their young ones. Yes, they give birth to your young ones. Presence of hair on the skin, okay, but the presence of mammary glands, ठीक है, sweat glands, all of these are the characters of mammals. So what is classification? Classification is only the process of classifying the organisms into convenient categories so that we can easily identify them, we can also remember their names, okay. एंड इसके अलावा वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि सो एंड सो स्पीशीज बिलोंग टू द क्लास ए बीज, दिस मींस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। और अगर मैं बर्ड्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरे माइंड में फटाफट आ जाएंगे कि भाई वो बाइलिम्ड ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनके फेदर्स जो हैं वो विंग्स में डेवलप हो गए, उनकी बोन्स फॉलो होती हैं एंड उनकी फ्लाइट मसल्स काफी पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो ये सारे करेक्टर्स किसके हैं? बर्ड्स के हैं, एबीज के हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, वो हमारा जो टास्क है स्पीशीज को मेमोराइज करने का, उसको क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं, ओके बेटे। तो उसके बेसिस पे कहते हैं कि हम हर एक ग्रुप जो है उसके मेंबर्स जो है उनको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट कम्स इन अवर माइंड रिलेटेड विद प्लांट्स, ठीक है। तो जब भी मैं प्लांट की बात बोलूंगी तो एकदम से मेरे माइंड में आ जाएगा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं which are green in color, they are able to synthesize their food, this means they are autotrophic in nature, okay, they are somewhat stationary at a particular place, and there are certain adaptive features found in them, presence of stomata to prevent the loss of water, okay। और इस तरह से काफी सारे करेक्टर प्लांट के मेरे माइंड में आते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो एक करेक्टर फटाफट मेरे माइंड में आ जाते हैं, दैट एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, they are dependent on some other living organisms for obtaining their food, okay बेटे। so उनके अंदर न्यूट्रिशन के मोड भी अलग-अलग हो सकते हैं। so all of these characters, on the basis of these observable characters we generally do the classification, okay बेटे। तो कहते हैं कि टैक्सोनॉमिक जो सिस्टम है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी जो है उसकी कैसी ब्रांच है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन देम। सो कहते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन जो है उसके पूरे प्रोसेस को हम देखें तो उसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज जो है उनमें रखा है। तो हर एक कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक रैंक को बेटे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड दैट रैंक which I have given to that particular organism in the scheme of classification, it is actually known as a taxa. तो अगर मैंने टैक्सा या टैक्सॉन को डिफाइन करने हैं, then I can say that taxon is a rank or a unit in the system of classification, ठीक है। तो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर जो है काफी सारी कैटेगरीज है। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वी हैव गिवन टू द किंगडम, ठीक है। सबसे हायर रैंक जो है वो हमने किंगडम को दिया। किंगडम जो है उसके बाद जो हमारा सेकंड रैंक है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बात कर रही हूँ। तो किंगडम से नीचे हमारे पास क्या आ जाता है? एनिमल्स के केस में फाइलम, एंड प्लांट्स जो है उनके केस में हमारे पास क्या आ जाता है? डिवीजन, ओके बेटे। सी दिस highest rank is of kingdom, then we have phylum for animals and division for plants, then next to the phylum the lowest rank is class, then next to the class the lowest rank is order, and order से नीचे वाला lowest rank family होती है, and family से नीचे genus होता है, and सबसे lowest rank जो है हमने taxonomical classification में किसको दिया है? species को दिया है, okay बेटे। अब one very important thing that you have to be taken into your mind, and that is at the lowest rank in the taxonomical hierarchy the rank is given to the species only and the highest rank is given to the kingdom। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब सबसे लोएस्ट रैंक में होता है ना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं,
ओके बेटे, जैसे जैसे हम लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक की तरफ बढ़ेंगे तो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आवरसेल्फ, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ विद माई रियल ब्रदर, दिस मीन्स वी बोथ ब्रदर एंड सिस्टर आर शेयरिंग मोर सिमिलर कैरेक्टर्स. तो ये हम दोनों जो है वो एक ही स्पीशीज का पार्ट है, ठीक है, वेरी मच सिमिलर. और अगर वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने आप को अपने ब्रदर, रियल ब्रदर से नहीं कंपेयर कर रही हूँ, मैं अपने आप को जो है अपने कजन से कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है बेटे, तो कजन के साथ भी मैं करेक्टर्स जो है शेयर करती हूँ, पर उतने क्लोज करेक्टर नहीं है मेरे जितने मेरे अपने रियल ब्रदर के हैं, क्योंकि हम एक ही फैमिली के मेंबर है. ठीक है, कजन की अपनी फैमिली है. ठीक बेटे, तो उसी तरीके से थोड़ा सा और दूर चले जाएं तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, फैमिली में. और फैमिली जो है वो उससे और कम करेक्टर शेयर करेगी, ऑर्डर जो है उसमें सिमिलर करेक्टर्स और कम होते जाएंगे. So whenever you proceed from the lowest rank towards the highest rank, what you see, the similar characters they keep on decreasing and the dissimilarities they increasing. So whenever you reach at the highest rank in the taxonomic hierarchy, that is kingdom, this means few characters are similar only. Okay बेटे, तो अगर हम कहते हैं कि we have two kingdom, what is kingdom plantae and another is kingdom animalia, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं मैं कह सकती ना कि सारे के सारे जो प्लांट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है. एल्गीज के डिफरेंट करेक्टर्स हैं, ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट हैं, टेरिडोफाइट्स के डिफरेंट हैं. ओके बेटे, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, दे आल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स. उसी तरह से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, आई कैन नॉट से दैट ऑल द एनिमल्स दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ करेक्टर्स. सम ऑफ द एनिमल्स दे आर लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर मैं एक्वेटिक भी कहती हूँ तो I am concerned here with the freshwater animals or the marine animals. तो marine animals जो हैं और freshwater जो हैं उनमें भी बहुत ज्यादा variations है. तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि सारे animal एक जैसे होते हैं. ठीक है, terrestrial animals बिल्कुल अलग हैं. terrestrial animals में भी इतनी सारी species है. कौन सी species की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर? ओके बेटे, तो इसका मतलब जितना बड़ा रैंक है हायरार्की के अंदर उतने ही उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम है और डिससिमिलैरिटीज क्या है, ज्यादा है. तो मैंने यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की है, दैट इज टैक्सॉन. तो व्हेनेवर you classify a particular organism on the basis of certain important observable characters into convenient categories, then each category represent, ठीक है, हर एक कैटेगरी जो है उसको अलग अलग नाम दिया गया है कि कौन से लेवल पे है. जैसे सबसे लोएस्ट लेवल पे जो कैटेगरी है उसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, स्पीशीज बोला है. उसके ऊपर जीनस है, जीनस के ऊपर फैमिली है, फैमिली से ऊपर ऑर्डर है, क्लास, फाइलम, एंड देन वी हैव किंगडम. तो कहते हैं कि स्पीशीज जो है वो भी तरह तरह की है. मैं कह सकती हूँ कि ये स्पीशीज डॉग की है, वो कैट की है, ये रैट्स की है, ठीक है, वो काउस की है, वो फैलोस की है, वो ह्यूमंस की. तो हर एक स्पीशीज जो है यहाँ पर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है. तो हर एक कैटेगरी में वो रैंक जो है ना उसको टैक्सॉन बोला गया. तो अगर मैं यहाँ डॉग बोलती हूँ तो डॉग एक टैक्सॉन है. ठीक है बेटे, अगर मैं वीट प्लांट की बात करती हूँ तो वीट भी एक टैक्सॉन है. अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ तो वो भी एक टैक्सॉन है, पर वो टैक्सॉन यहाँ पे स्पीशीज के लेवल पे है. उसी तरह से अगर मैं जीनस में चली जाऊंगी तो जीनस जो है वो स्पीशीज, मिलती जुलती स्पीशीज का ग्रुप है. इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज. इंटर रिलेटेड स्पीशीज बोला है मैंने, एक ही तरह की स्पीशीज नहीं बोला, मिलती जुलती स्पीशीज का ग्रुप है. ओके, तो इसमें उसमें कई तरह की स्पीशीज हो सकती हैं. ओके बेटे, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जीनस इज इटसेल्फ अ कैटेगरी, और उसके अंदर भी अगर अलग अलग स्पीशीज भी हैं तो हर एक स्पीशीज जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करिए. तो टैक्सॉन जो है ना वो स्पीशीज के लेवल पे भी होता है, जीनस के लेवल पे भी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, हर एक लेवल पे जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जो रैंक है, उसको यहाँ पे टैक्सॉन बोला गया. ओके, so here you are very much clear about this taxonomic hierarchy. You are also familiar with the term classification. Okay बेटे, I am on page number 8 और उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है. What is taxonomy? Taxonomy is a branch of biology that deals with the process of classification.
Okay, so whenever we have to classify the organism, we must have to consider the external features of the organism along with the internal features too. ठीक है, हम सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही कंसीडर नहीं करते, उसको क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स भी लेते हैं. ओके बेटे, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर. तो कहते हैं कि अगर मैं एनाटॉमिकल फीचर्स की बात कर रही हूँ, दिस मींस वी आल्सो हैव टू कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा सेल टाइप रखते हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके बेटे, वी आल्सो हैव टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस टू. हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है. ठीक है, वी आल्सो हैव टू नो द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, what kind of relationship that organism have with its habitat or the environment in which that organism is living, that we also have to consider here. So इसलिए वो कहते हैं कि classification जो है, it is a lengthy process and we have to follow the morphological as well as the internal features or the anatomical features too. Okay students, another very important thing here is that human beings, you know that human beings are the curious type of organisms. ठीक है, they have a high level of curiosity, so they are very much curious to know everything about the species that are present on planet Earth along with them. ठीक है, तो ह्यूमन माइंड जो है ना, वो हमेशा सोचता रहता है, वो हर एक स्पीशीज के बारे में डिटेल में जानना चाहता है जिनके साथ वो अर्थ में रह रहा है. तो कहते हैं कि here we are going to introduce one very special branch of biology and that is known as systematics. What is systematics? So systematic here is a Latin word and here systema means the systematic arrangement of the organisms. ठीक है, तो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में. ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, सबसे पहले अगर एल्गीज थी तो एल्गीज कैसे ब्रायोफाइट्स में डेवलप हुई, ब्रायोफाइट से कैसे टेरिडोफाइट्स बने हैं, टेरिडोफाइट से कैसे जिम्नो बने हैं, जिम्नो से कैसे एंजियोस्पर्म्स बने हैं. तो ह्यूमंस जो है वो पूरा का पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है उसको जानना चाहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि whenever we have to classify the species, they must have to identify they must have to identify as well as. ठीक है बेटे, अगर उन्होंने जो है किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करना है तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन तो किया ही है और उसके बाद उसकी नेमिंग भी कर ली. अब क्लासिफिकेशन की जब टर्न आई है तो they cannot do the classification on some rough means only. They want to go into the detail about that particular organisms. So they not only focus on the morphological feature but they also take into consideration the various type of anatomical features that are related.